Okay, this is question number 1 of your 12.4. 12.4, question 1. Okay, so we had done the basic synopsis of this thing, and today there are approximately 11 sums in this introductory exercise, and it is important. A wheel is rotating with an angular acceleration uniform, means alpha is constant, covers 50 revolutions. So number of revolutions is 50 revolutions. So if you tell me what is theta, theta will become 2 pi into number of revolutions will become 100 pi, because one revolution takes 2 pi. So 50 revolutions is going to take 100 pi in a time of 5 seconds. After the start means omega 1 is 0, taking that it's starting from rest. Find the angular acceleration. So alpha we need to find, and we need to find angular velocity, that is omega 2 at the end of 5 seconds. So after 5 seconds we find this. So simple question it is. We know theta over here, so if we make analogy over here, theta is omega 1 t plus half alpha t square. So theta is omega 1 is 0 plus half alpha t square. So alpha over here is going to become 2 theta by t square will become 2 into theta is 100 pi by t square is 5 square. So this answer will come 8 pi radian per second square. This is okay. The second formula which we know is omega 2 is omega 1 plus alpha t. This is 0. This is 8 pi into t will become 40 pi radian per second. Hello. You know it, right? Hello. Yes or no? Clear है ना ये तो? Yes, sir. Yes, sir. ये तो सिंपल है, ये काइनेमेटिक्स में भी कर चुके हैं हम लोग. It is the same thing. Okay. Question number 2 is the same type, same thing it is. We'll come to question number 3. Question number 3 it is of introductory exercise. A flywheel of moment of inertia 5 kg meter square is rotated with the speed of omega is given as 10 radian per second. Because of friction, the axis at the axis it comes to rest. So omega 2 is equal to 0. Omega 1 is this. It comes to rest in a time of 10 seconds. Find the average torque which is there. So we know the general formula tau is equal to I alpha. Tau is equal to I alpha. Alpha is omega 2 minus omega 1 by t. Torque will always be a retarding torque, therefore it will come in minus sign. 5 omega 2 is 0 minus 10 divided by time is 10. So this and this will go. So it will become minus 5 Newton meter. Minus 5 Newton meter. It is a retarding torque. That's right. Okay. So this all things we have done it before also. Question number 4. Yeah, we'll see. Question number 4 it is. A wheel starting from rest, मतलब उसका omega 1 is 0. Uniformly accelerated alpha is given in the first condition is 4 radian per second square for a time of 10 seconds. This is initially. It is then allowed to rotate uniformly with next 10 seconds. So after that, omega in the second part, omega is constant for the next 10 seconds. This next 10 seconds, this is T1, this is T2. And finally, it comes to rest in the next 10 seconds. So it is a retardation in the next 10 seconds. So next 10 seconds में T3 में omega final becomes equal to 0. Now this is better to draw a graph
So we'll draw a graph of omega versus time. We have all done this in kinematics. So initially they are telling you that this is the part 1, this is part 2, and this is part 3. So part 1 में omega is starting from 0 and alpha is constant. तो omega versus alpha का slope रहेगा, omega versus t का slope रहेगा alpha, and alpha is given as 4, and we know till 10 seconds ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 40 radian per second. Then till the next 10 seconds it goes with omega constant. तो omega constant है 10 seconds के लिए, उसके coordinates हो जाएंगे 20 seconds, and then it will come to rest in the next 10 seconds. So can I say alpha will also be the same, that the slope is going to become -4 only, and this is next 10 seconds, मतलब इसके coordinates हो जाएगी 30. But did everyone understand what is happening? Hello, ये Yes. चीज Yes, कर चुके हैं. अब area under the curve will give you integration of omega dt, and integration of omega dt is nothing but theta. So area under the curve is half sum of the parallel sides into height. So parallel sides are 30 plus 10 into height is 40. 800 radians is the answer. ठीक है ना यार? Easy method to find, that is area under the curve, which we have done it before in kinematics also. You must be well aware of all these sums. Hello, beta, are you all understanding ना? Easy है ये तो. yes, sir. ठीक है, अब आते हैं हम लोग 6th क्वेश्चन की तरफ. दिस इज द 4th क्वेश्चन. एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि आप लोग फिर से यही सम्स बार बार करिए ताकि दिमाग में फिट हो जाए कि भाई ऐसे ही करना है इसको. ओके, once you understand these sums, any other sum comes in mixture of this thing, आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, it will be the same thing. Okay, question number 6 है ये. A solid body rotates about the stationary axis with theta का function given as 6t minus 2t cube. This is given. Theta as a function of t is given. ठीक है. Find the mean value of angular velocity and angular acceleration. ये वाला हम लोग पहले देखते हैं. Mean value of omega and mean value of alpha. अच्छा, जब भी mean या average value निकालना है ना, average value, okay, सपोज मुझे y एवरेज निकालना है, एवरेज ऐसे निकालते हैं. ओके, जब भी आप बोलेंगे ना एवरेज, ऐसे लिखता नहीं हूं मैं, जब भी फिजिक्स में हम लोग एवरेज की बात करेंगे तो ऐसे ब्रैकेट में डाल देते हैं उसको. सो इट विल बी, the function will be represented as integration of y dt upon integration of dt from 0 to t, and this is also from 0 to t. ये एवरेज वैल्यू फाइंड करने का तरीका है. हेलो हेलो, यस और नो? हेलो, आई ऑल देयर? यस और नो? Yes, sir. ये एवरेज वैल्यू फाइंड करने का तरीका है. देखो ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ. व्हाट इज एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? याद है एवरेज स्पीड हमने पढ़ा है ना भाई? क्या पढ़ा है? टोटल Total distance upon total time. उसको याद है, मैं ऐसे लिखता था v1 t1 प्लस v2 t2 अपॉन t1 प्लस t2. याद आ रहा है किसी को? हेलो, इट वाज एक्चुअली s1 प्लस s2 ना.
हेलो, कैसे हो बेटा? ये Yes, sir. और फिर इसको ऐसे लिखते हैं तो इसको हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ VDT भी लिख सकते हैं जब नॉन यूनिफॉर्म रहेगा अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DT। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो, ये समझ में आ रहा है क्या? तो Yes, यही sir. मेथड हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पर यहाँ पर दिख रहा है कि इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम ना, देखो ना, तो ये कांस्टेंट थोड़ी है, तो हम लोग को थीटा इंटू टी अप्लाई नहीं कर सकता है या ओमेगा इंटू टी अप्लाई नहीं कर सकता है। दैट्स व्हाई वी अप्लाई दिस फॉर्मूला when it is a function of time. Now first part they are asking what beta? Omega average is integration of omega dt from 0 to t upon integration of dt। ये उसका मेथड है 0 to t। ओके, आप लोग मुझे कहेंगे भाई सर ओमेगा कैसे निकालेंगे? ओमेगा, अच्छा ओमेगा कहाँ से निकालेंगे? इधर से डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा ना, 6 माइनस 6 टी स्क्वायर। हेलो 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 हेलो, यस और नो? Yes, sir. और इसका फिर से डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या निकलेगा? इस चीज का फिर से अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो अल्फा मिलेगा ना। So these three things to we know how to do. We just calculate omega average will become integration of omega dt. Omega is given as 6 minus 6t square dt upon integration of dt from 0 to t। तो कंप्लीट यही क्या बोला है, टाइम कहां तक जाना है? टिल इट कंप्लीटली स्टॉप्स। कंप्लीट स्टॉप मतलब ओमेगा कितना हो जाना मांगता है? हेलो, 0. so omega should become equal to 0। So can I say when it stops omega is 0, मतलब can I say 6 minus 6t square should be 0? 6 is equal to 6t square, t square will become 1, so t is 1 second ना, yes or no? -1 तो नहीं हो सकता ना। हेलो, so when it stops can I say omega is becoming, t is becoming 1 second at that moment? तो ये लिमिट्स हो जाएगी फ्रॉम 0 to 1 ना। हेलो, Yes, sir. हाँ बोलो, सिंपल है यार, एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें तो दिस इज ओमेगा एवरेज, it will become 6t minus 6t cube by 3 upon t 0 to 1 0 to 1 now if you put the values and everything you will get 4 radian per second is the average value मिल गया। ठीक है यार? हेलो, यस और नो? Yes, sir. ये भी मिल गया। अब मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा रब कर देता हूँ इधर ताकि आपको सामने सामने समझ में आए। now a part only अल्फा का एवरेज निकालना है। इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा dt upon integration of dt from 0 to t ना, that is 1 ना, अल्फा का तो -12t dt 0 to 1 and this is t 0 to 1 only ना। हेलो, so this answer will come -6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो आप लोग को करने आता है ना इंटीग्रेशन, ठीक है ना? So this is okay, this is the first part which they are telling you that mean value of omega निकालना है, mean value of alpha निकालना है, mean value का ये मेथड है, ये मेथड है, वो ध्यान रखना है। they have given you in the side also, देखो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है मीन वैल्यू ऐसे निकालना है।
Okay. B point, the angular acceleration when the body stops. So alpha when the body stops, only alpha when the body stops. तो स्टॉप जब होता है तो t का वैल्यू ओमेगा 0 हो जाएगा, t का वैल्यू 1 सेकंड रहेगा, एंड अल्फा का फंक्शन हमारे पास है -12t. t का वैल्यू if I put 1 will become -12 radian per second. At that moment when the body stops, at that moment the alpha is negative. Okay, because वो उल्टा हो जाएगा ना फिर. याद है ना, हमने लीनियर मोशन में पढ़ा था ना, ऐसे जाता है बॉडी, एक मोमेंट पे वो स्टॉप होता है, एंड देन जब ए नेगेटिव रहेगा तो टर्न कर जाएगा ना. हेलो, याद है ना आपको? ये तो Yes, ना, sir. तो यही चीज एंगुलर मोशन में भी होगा, वो घूम रहा रहेगा एंटी क्लॉकवाइज. एट द मोमेंट व्हेन स्टॉप्स अल्फा इज नेगेटिव, सो वो उल्टा घूमना चालू हो जाएगा. So that is simple only. We know how to do it. This is an important question. Question number 6. Please keep in mind. We'll come to question number 9. Question number 11 is very important. 9 and 11. 9, 10 and 11. This is your, this was your 6, 7, 8, 9. ये 9th वाला question है. A flywheel whose moment of inertia is 16 kg meter square is rotating in its own plane about a smooth axis, मतलब friction नहीं है, through its center. The angular velocity is 9 radian per second initially. So initially it is 9 radian per second. The torque, when a torque is applied to bring it to rest, मतलब omega 2 0 हो गया, in a time of t naught seconds. So time जो लगा उसको t naught seconds लगा, तो वो रेस्ट पर आ जाए. Find t naught if the torque applied is 4 न्यूटन मीटर. t naught का वैल्यू ढूंढना है. ठीक है, सिंपल है ये तो. Torque is equal to I alpha. Average torque is I alpha. For I is given as 16. Alpha is omega 2 minus omega 1 by t. I'll take magnitude only because यहाँ पे torque positive दिया हुआ है. Omega 2 0 है minus 9 by t naught. तो यहाँ से t naught आपको डायरेक्टली मिल जाएगा. Yes or no? हेलो, 36 seconds. ये तो मिल गया. Second part. The magnitude of torque after t seconds if it is given by kt. Okay. The magnitude of torque after time t is given by k into t. कैसे निकालेंगे, कोई बता सकता है? हेलो, यस सर. Torque is equal to I alpha. Torque is equal to I alpha. And then you have to use integration. Okay. ध्यान दो, मैं एक दूसरे मेथड से सिखाता हूँ आपको. देखो, आपने इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन का नाम सुना है? इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन, हेलो, याद है? ये हम लोग कर चुके हैं ना. इनिशियल मोमेंटम प्लस माइनस इम्पल्सेस फाइनल मोमेंटम. ये सुना है क्या आप लोगों ने? Yes, sir. हेलो, ये हम लोग कर चुके हैं, राइट? आई डोंट, पीछे किया है ना अभी तो, पीछे वाले चैप्टर में. यस और नो? वैसे ही इसका एंगुलर एनालॉजी क्या हो जाएगा? इनिशियल एंगुलर मोमेंटम प्लस माइनस एंगुलर इम्पल्स. ये लीनियर इम्पल्स है, ये एंगुलर इम्पल्स है, इज फाइनल एंगुलर मोमेंटम. आर यू अंडरस्टैंडिंग?
हेलो हेलो बाबा, यस और नो? ये चीज का ध्यान रखना है। सो नाउ बिकॉज यहाँ पे टाइम की बात कर रहे हैं ना, तो जब भी टाइम की बात करता है ना, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन बहुत काम की चीज है। ट्रिक याद रखना, whenever they talk about time we can use इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। ये बहुत काम की चीज है, याद रखना। टाइम इज आस्क्ड या टाइम इज गिवन या जो भी है, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन भी सीधा जंप करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज जे का फॉर्मूला? व्हाट इज जे गिवन एज? बाबा हेलो, जे का फॉर्मूला क्या होगा यार? इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है? हेलो, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। तो इसका एंगुलर एनालॉजी क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? हेलो यार, बोलो, समझ में आ रहा है क्या? गेटिंग इट और नॉट? हम्म। अब यहां पर ध्यान देना, देखो ये इक्वेशन मैं यूज कर रहा हूं, तो समझ में आएगी। आगे भी पढ़ाया जाएगा, इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज में है। आई थिंक इट इज द लास्ट इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज, इक्वेशन 11 या 10 पर है। वो चीज एज अ होल आपको ये सिखाई जाएगी एक्स्ट्रा में, पर अभी फिलहाल हम लोग देख लेते हैं। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज आई ओमेगा, एंगुलर इम्पल्स लगा, माइनस लगा बिकॉज उसको रोक रहा है वो, इंटीग्रेशन ऑफ टाउ डी टी, एंड फाइनल एंगुलर मोमेंटम तो जीरो हो गया ना, बिकॉज आई ओमेगा जीरो हो गया ना। देखो ना, ओमेगा फाइनल जीरो है। कैन आई से आई ओमेगा इज गोना बिकम integration of tau dt? Hello, are you getting it? Hello, are you understanding? ये समझा यस। आपको? ये इक्वेशन हमको मिलता है। अब आए मालूम है हमको 16 ओमेगा इनिशियल 9 है, इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क चाहिए फ्रॉम 0 टू टी नॉट, बराबर क्या? टाउ इज गिवन एज के टी डी टी, तो यहाँ से 16 इंटू 9 is k t square by 2, which is t naught square by 2. So t naught यहाँ से in terms of k आपको मिल जाएगा 12 root of 2 by k. That is all okay. बाबा, ये समझा आप लोग को? तो यस। हाँ, बस ये ही इम्पोर्टेंट है, बाकी तो आपको आता ही रहेगा मैथमेटिक्स करने के लिए। सो इसको कहते हैं इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। कब यूज करना है? जब टाइम के बारे में बात हो रही है ना क्वेश्चन में, टाइम के बारे में। देखो ना, यहाँ पर भी तो टाइम के बारे में बात हो रही थी, यहाँ पर भी टाइम के बारे में बात हो रही है। सीधा आप जंप करना है इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन की तरफ, तो आपको फटाक से आंसर मिल जाएगा। अगर आप इधर उधर जाने जाएंगे तो टाइम नहीं मिलेगा फिर आपको। दिस इज हाउ योर थिंकिंग प्रोसेस शुड बी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आता है। It is the same thing. I'll just discuss more. Angular velocity of a gear is controlled by omega is given as 12 minus 3t square. ये दिया हुआ है भाई, ठीक है। ओमेगा is in radian per second is positive in the clockwise sense. Find the net angular displacement, theta मांगता है, from 0 to 3 seconds. And number of revolutions, so easy है, theta by 2 pi. Okay.
थीटा तो हमको मालूम है कैसे मिलता है. थीटा इज इंटीग्रेशन ऑफ, so simple only, it is integration of omega dt from 0 to t. Theta is integration of 0 to 3, 12 minus 3t square dt. यहाँ से थीटा आपको मिल जाएगा 9 रेडियन. Number of revolutions is theta by 9 by 2 pi. हेलो, ये ठीक है ना? Yes, sir. ये चीज ठीक है. Now we have completed with our introductory exercise 12.4. 12.4. अभी हम लोग आते हैं 12.5 की तरफ. 12.5 is all about angular momentum. It is about angular momentum. हमने डिस्कस नहीं किया ना एंगुलर मोमेंटम के बारे में, तो एंगुलर मोमेंटम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. सिंबल इज एल बार. एंगुलर मोमेंटम जैसे टॉर्क भी दो टाइप का था, वन वाज आर बार क्रॉस एफ बार एंड सेकंड वाज आई अल्फा, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम भी दो टाइप का होता है. फर्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम of a particle about a fixed point. What do you mean by this thing? That there is a particle of mass m moving at the velocity v. यहाँ से इसका p बार हो जाएगा ना mv बार. एंड आप इधर से देख रहे हो इसको स्टैंडिंग ईयर. ये आपका रेफरेंस पॉइंट है ओ, और ये आपका पोजीशन वेक्टर है. कैन यू टेल मी दिस एंगल इज थीटा? ऐसा हम तो इसके दो कंपोनेंट्स रहेंगे ना. एक रहेगा, ये पढ़ चुके हैं हम लोग, p cos थीटा. एक रहेगा v sin थीटा. कौन सा कंपोनेंट इसको घुमाने में हेल्प कर रहा है? हेलो, V sin theta. v sin थीटा. Angular momentum is defined as r bar cross p bar, that is rp sin theta. देखो ना, it is r into p is mv sin theta. So it is actually mv into sin theta, that is this, into its perpendicular component. Yes or no? Because यही तो component angular momentum बना रहा है ना. Right? So it can also be written as mv into r perpendicular. mv into r perpendicular. देखा, अगर मैं ये mv लेता, ये r perpendicular होता ना, ये वाला. Yes or no? हेलो 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 हेलो, यस और नो? क्लियर है ना? तो यही तो, अगर ये देखो ये भी थीटा है, अगर मैं बोलूँ तो ये तो आर साइन थीटा ही रहेगा. तो अगर आप ये कंपोनेंट ले रहे हो एम बी, तो इंटू आर साइन थीटा ये भी हो सकता है. हेलो, कुछ समझ में आ रहा है कि मैंने कंफ्यूज कर दिया आप लोग को? हेलो, देखो इसके दो तरीके हैं पढ़ने के. केस वन, आई मेक इट सेपरेटली. एम वी ये आर बार था, ये थीटा. तो पहला तरीका, आप ये कंपोनेंट ले लो एम बी साइन थीटा मोमेंटम into its perpendicular component. So what is the angular momentum over 2? mv into r sin theta.
MV into R sin, MV sin theta into R, that is MV R sin theta, बराबर है? हेलो। Yes, sir. तो दूसरा तरीका देखने का क्या है कि ऐसे ये MV से जा रहा है, इसको स्प्लिट मत करो, R को तोड़ो, R को तोड़ दिया मैंने, इसको तोड़ा, तो ये तो ये एंगल थीटा है बेटा, तो ये भी तो एंगल थीटा रहेगा, तो MV इंटू ये R sin थीटा बन गया, ये भी चलेगा ना यार? हेलो। सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट, अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो R sin थीटा है। हेलो। हेलो, कुछ बात समझ आ रही है क्या, क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. तो एंगुलर मोमेंटम ओवर टू विल बिकम MV इंटू R sin थीटा। तो देखो आप इस तरीके से करो या उस तरीके से करो, जनरल फॉर्मूला M का क्या, ये क्या बनेगा, MV इंटू R परपेंडिकुलर, ये याद रखना, ये MV इंटू R परपेंडिकुलर, यस और नो? अब इसका डायरेक्शन विल बी गिवन बाय R बार क्रॉस P बार, मतलब आपको फिंगर्स कर्ल अपने राइट हैंड के लेके जाने हैं फ्रॉम R टू P। तो अगर इधर मैं बोलूँ R टू P अगर मैं लेकर जाऊँ तो कैसे आएगा, L बार का डायरेक्शन इस Inwards. टाइप, इनवर्स आएगा ना, योर थंब विल कम इनसाइड ना बेटा, L बार आया ना। अच्छा अगर मैं इधर बोलूँ आपको सर्कुलर मोशन में है, ये रेडियस से पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो वेलोसिटी ऐसे है, मास है। अब बताओ व्हाट विल बी द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर, क्या रहेगा? MVR. MVR ही रहेगा ना, MV इंटू आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो MVR ही है, और डायरेक्शन क्या है, इट इज फ्रॉम R बार टू P बार, कैसे आएगा, तो थंब विल कम आउटसाइड ना। हेलो, बोलो ना, क्लियर है ना? अरे भाई ये ऐसे घुमाएगा ना इसको, ये ऐसे ही तो घुमाएगा इसको, एंटी क्लॉकवाइज याद है ना, आउटसाइड होता है, यस और नो? Yes, sir. यही चीज है। अच्छा मैं और एक सिनेरियो देता हूँ आप लोग को, ये बॉडी ऐसे जा रहा है एंड आई एम स्टैंडिंग अलोंग द सेम लाइन, ये पॉइंट O, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम आउट O? 0. जीरो, बिकॉज वो लीनियरली चल रहा है ना उसके मुताबिक तो। अरे भाई अगर आप इधर स्टैंड करेंगे, आप देखेंगे ये तो सीधा जा रहा है, घूम रहा थोड़ी है, तो एंगुलर मोमेंटम इज MV इंटू R परपेंडिकुलर जीरो ना, जीरो रहेगा, यस और नो? हेलो। अच्छा इसका जो फेमस सम आता है वो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला सम रहता है, प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब क्या, सपोज आई थ्रो इट विद एन एंगल थीटा, शायद पढ़ भी चुका है, ये रहेगा V, तो ये रहेगा V cos थीटा, ये डिस्टेंस इज मैक्सिमम हाइट, आई वांट टू फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम when the particle is there at the highest point above the point of projection, when the particle is there at the highest point above the point of projection, so it will become MV into R perpendicular about that fixed point ना, तो MV into R perpendicular, R perpendicular तो ये होगा ना, ये होगा कि नहीं होगा, यस और नो? Yes, sir. ये क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम ओवर पॉइंट O, MV cos theta is the into R perpendicular, R perpendicular is R perpendicular which could also be written as MV cos theta into H maximum. What is H maximum का जनरल फॉर्मूला, अरे बोलो? U square sin square theta by 2G. दिस इज एंगुलर मोमेंटम ओवर द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ऐसे बहुत सारे सम्स एंगुलर मोमेंटम के टाइप्स में पूछे जाते हैं। हम्म? हेलो हेलो, मैं कुछ ज्यादा पढ़ा रहा हूँ क्या, समझ में आ रहा है ना सबको? अरे भाई। Yes, sir. Yes, sir. हाँ बस, ओके प्लीज टेल मी इफ माय स्पीड इज बिकमिंग फास्ट और स्लो। अब मुझे आप एक बात बताओ, सपोज एक कोनिकल पेंडुलम है मेरे पास, याद है ना, ऐसे होता है ना, ये
कैसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है। बॉब इज गोइंग दिस वे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो, अरे भाई, यस और नो? Yes, sir. अच्छा, ये पॉइंट ओ पकड़ता है। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉब अबाउट पॉइंट ओ? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉब? ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉब अबाउट द पॉइंट ओ? यार ऐसे मत, Upwards. अपवर्ड्स ही रहेगा ना, बिकॉज इट्स आर बार क्रॉस पी बार ना। अरे भाई इधर देखो, ये आर बार होगा, पी बार तो ऐसे है ना। अगर आप ऐसे उंगलियां घुमाने जाएंगे ऑफ योर राइट हैंड तो ऊपर ही आएगा, और कोई भी डायरेक्शन में ऊपर ही रहेगा ना। हेलो, बॉब इधर हो या इधर हो या इधर हो या किधर भी हो, हेलो, Yes, sir. इन ऑल डायरेक्शंस द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी वेयर? अपवर्ड। बराबर है क्या? हेलो 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 हेलो, यस और नो? Sir. अच्छा, इस एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कांस्टेंट और चेंजिंग? Constant. मतलब एल नॉट का वैल्यू एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, दैट इज आर है, एंड इट इज अपवर्ड। तो कहना है ये पूरा चीज कांस्टेंट हो गया ना। अरे भाई, ये भी वैल्यू कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, तो दोनों चीज तो कांस्टेंट हो गई। हेलो हेलो, तो आपको पूछा था एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, वेरिएबल, नन ऑफ दीज, या जो भी क्वेश्चन रहेगा, एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज गोना रिमेन कांस्टेंट। सही है क्या? हेलो, अब मजा आएगा। अब इधर ध्यान देना। मैं आपसे कहूँ इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम निकालना है, इसको पकड़ते हैं पॉइंट पी, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ द थ्रेड। अब मेरे को बोलो एंगुलर मोमेंटम का क्या ख्याल है? अब थोड़ा हार्ड है, इमेजिन करना ही हार्ड है। देखो मेरी बात सुनो, ये आर बार बनेगा ना। हेलो, अरे भाई, यस और नो? Yes, sir. अब आपको अपनी राइट हैंड की उंगलियां लेकर जाना है आर बार टू पी बार। देखो ना, पी बार इधर है, पी बार इधर है, इधर है, मतलब स्क्रीन के बाहर आ रहा है सब कुछ। सही है ना? Yes, sir. हेलो, तो आप अपनी उंगलियां लेकर जाएंगे फ्रॉम आर, मेरे साथ में, आर टू पी। पी मतलब अपनी तरफ पॉइंट करो, स्क्रीन के बाहर पॉइंट करो, तो अंगूठा ऐसे आएगा। हेलो यार, बोलो, क्लियर है एट दिस Yes, इंस्टेंट? sir. अरे भाई, ये पॉइंट नंबर वन पकड़ता है, तो कैन आई से दिस इज एल वन बार? क्लियर है? हेलो हेलो हेलो, बोलो, सही है ना? Yes, sir. अब इस पॉइंट पे आते हैं हम लोग। इस पॉइंट नंबर टू पकड़ता है, ये आर बार बना इधर से इधर तक, और पी बार अंदर है, स्क्रीन के अंदर डाल देना है आपको। जब आप उंगलियां स्क्रीन के अंदर डाल देंगे तो आपका अंगूठा किधर आएगा? आर टू, स्क्रीन के अंदर डाल दिया तो ये एल टू बार बना ना। हेलो, थोड़ा हार्ड है इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है, ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन था, मतलब जेई मेन में नहीं पूछा गया था। स्टार्टिंग में ये तो सबको आ जाएगा। हेलो 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 हेलो, Yes. हाँ। तो क्या एल बार एट पॉइंट पी कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है? देखो ना, Variable. Variable. वेरिएबल है। एट पॉइंट पी मैं बोलूं एम बी इंटू आर तो कांस्टेंट रहेगा, आर मतलब हाइपोटेन्यूज बनेगा ना। हेलो हेलो यार, यस और नो? वो थ्रेड का लेंथ बनेगा ना। यार बोलो ना, थ्रेड का लेंथ बनेगा ना ये, बट डायरेक्शन इज चेंजिंग, सो दिस आंसर इज क्या भाई? वेरिएबल। डिड यू गेट इट?
Did you get it? Yes, कैसे sir. कॉन्सेप्ट से दे आर प्लेइंग, कैसे कॉन्सेप्ट से दे आर प्लेइंग। एक छोटा सी कॉन्सेप्ट को इतना ब्यूटीफुली उन्होंने डिजाइन किया और क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये तो बात हो गई एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल की। और बाकी डीसी पांडे में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, आप लोग पढ़ सकते हो। आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। एंगुलर मोमेंटम of a rigid body in rotational motion. वो खाली अबाउट एन एक्सिस रोटेट कर रहा है। अगर मैं आपको बोलूँ एक ये हम कर चुके हैं, एक एक्सिस पे वो घूम रहा है विद एन एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो यू नो एवरी पार्टिकल, एवरी डैम पार्टिकल इज गोना मूव इन विच मोशन? यार बोलो। सर्कुलर। सर्कुलर मोशन। तो इसके पास v रहेगा विच विल बी r1 ओमेगा, वैसे ही v2 रहेगा r2 ओमेगा। कैन आई से v इज r ओमेगा, वैसे ही v nth पार्टिकल विल बिकम rn ओमेगा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, हर एक पार्टिकल के पास मोमेंटम है। सर्कुलर मोशन का मोमेंटम होता है mvr, तो m1 v1 r1 दैट इज m1 v1 ऊपर से उठाएंगे r1 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 स्क्वायर ओमेगा एंड द डायरेक्शन विल बी एक्सियल ना। हेलो, एक्सियल अभी तो पढ़ा था यार, सर्कुलर मोशन में एक्सिस के अलोंग होता है ना L1। Ln क्या हो जाएगा? mn rn स्क्वायर ओमेगा। दिस इज ऑल डेरिवेशन व्हिच वी हैव डन इट इन आवर थियरी। हां, कुछ नया नहीं है। थर्ड, कैन आई से सिंस सबका डायरेक्शन एक्सियल है, सबको ऐड मार देता है, बिकॉज एक्चुअली तो ये वेक्टर क्वांटिटी है बट डायरेक्शन सबका एल का डायरेक्शन यही है ना, तो सब एक ही डायरेक्शन में मतलब कांस्टेंट है, तो सबको ऐड कर देंगे बिकॉज दे आर देयर इन द सेम डायरेक्शन। सो कैन आई से एल नेट इज गोना बिकम L1 प्लस L2 प्लस डॉट 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 Ln। तो ओमेगा कॉमन निकलेगा यहाँ से, ब्रैकेट में बोलेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस डॉट 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 mn rn स्क्वायर फॉर ईच एंड एवरी पार्टिकल इज कॉल्ड एज I। so L net will become I omega and will be in the same direction as that of omega bar, and omega bar by right hand thumb rule is along the axis of rotation, anti-clockwise outside, clockwise inside. Yes or no sir? Hello, hello यार, easy है ना ये तो। So this is L about this axis, हाँ। L अगर अलग अलग हुआ तो ऐड नहीं कर सकते हैं हम लोग। हेलो, हेलो, बिकॉज दिस इज एडिशन ऑफ वेक्टर फॉर्मेट। यस और नो? यस सर। तो अगर सबका L अलग अलग हुआ, एक सर्कल में जा रहा है दूसरा सर्कल में नहीं जा रहा है, तो नहीं कर पाएंगे आप लोग, तो नहीं कर पाएंगे आप। गिरेंगे ना? इन Yes, सब एडिशन L के लिए सबका L एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। सो इसलिए हम लोग लिखते हैं L अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे बोलेंगे हम लोग, इज I इनटू ओमेगा, बिकॉज इट शुड बी देयर इन द सेम डायरेक्शन। ये हर जगह नहीं काम करेगा, L सब डायरेक्शन में सेम होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको तीसरी क्वांटिटी के बारे में बताऊंगा, दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी in combined translational plus rotational motion। अब ये इंपॉर्टेंट है, जेई के अंदर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस इस पे से आते हैं। ओके, मतलब एक बॉडी जो है वो चल रही भी है और घूम रही भी है। यस और नो? So there is combined translational motion and combined rotational motion. Yes or no? yes sir। ना यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम दो किस्म का आएगा।
सपोज एक पॉइंट है जहां पर हमको एक फिक्स पॉइंट ये है, फिक्स पॉइंट यहां से कहना ही से ये डिस्टेंस इसका r, ठीक है। सो इसमें दो टाइप के एंगुलर मोमेंटम बनेंगे। पहला वाला एंगुलर मोमेंटम जो था दैट इज अबाउट द फिक्स पॉइंट O, which will be mv into r perpendicular, that is mv into r, हेलो mv into r ना। Yes, उसका sir. डायरेक्शन क्या रहेगा, इसका डायरेक्शन क्या रहेगा, बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका ध्यान रखें। इसका डायरेक्शन क्या रहेगा देखो ना, इट इज r बार क्रॉस p बार ना, r बार क्रॉस p बार कैसे आएगा, Into the screen. इनटू द स्क्रीन आएगा, मतलब क्रॉस आएगा, सही है ना। हेलो, एंड दूसरा वाला एंगुलर, दिस इज ड्यू टू विच मोशन, Translational. ट्रांसलेशनल मोशन। एंड सेकेंड वाला एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा दैट विल बी ड्यू टू रोटेशन, will be due to rotation, that will become IC into omega, ये सेकंड वाला है। अच्छा IC क्या है, this IC is not moment of inertia about O, it is the moment of inertia about the center, मतलब ये पॉइंट के अक्रॉस into omega। बिकॉज अगर आपको प्योर रोटेशन पकड़ना है ना ये बॉडी का, तो प्योर रोटेशन तो इस एक्सिस पर हो रहा है ना यार। हेलो हेलो, अगर आप प्योर घूमना देख रहे हो ना, गोल 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 गोल, तो कौन सी एक्सिस पर हो रहा है, वो आईसी एक्सिस पर ही तो हो रहा है। हेलो, यस और नो। Yes, sir. तो अगर आप इसको प्योर रोटेशन में लेकर जाते हो, प्योर रोटेशन, तो इस पॉइंट पे थोड़ी घूम रहा है यार, इस पॉइंट पे थोड़ी घूम रहा है, वो घूम रहा अपनी खुद की एक्सिस पर है प्योर रोटेशन में। तो अलग अगर प्योर रोटेशन पकड़ूंगा तो विल बिकम आईसी ओमेगा, where IC is the moment of inertia about that axis of rotation which is right now at the center। अच्छा IC ओमेगा का डायरेक्शन क्या रहेगा, हेलो ओमेगा का डायरेक्शन क्या है, ये कैसे घूम रहा है, ओमेगा कैसे घूम रहा है, क्लॉक के एंटी क्लॉक, And clockwise. क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इट इज इनसाइड ओनली ना। हेलो, यस और नो। Yes, sir. तो कैन आई से नेट एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, LO प्लस LC दोनों का डायरेक्शन सेम है देखो। अरे भाई यस और नो। तो एल नेट कैसे लिखा जाएगा, MVR प्लस IC इंटू ओमेगा, यस और नो। Yes, sir. अब इसमें सिनेरियो बहुत सारे बनते हैं। सपोज मैं थोड़ा सी आपको कंफ्यूज करना चाहूंगा, आप होंगे तो नहीं। ओके सपोज ये पॉइंट है, ये पॉइंट पे मुझे मांगता है, दिस इज अ फिक्स पॉइंट, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, फिक्स पॉइंट नहीं पकड़ सकता मैं, रेफरेंस पॉइंट पकड़ता हूँ इसको। मैं आपसे कहूँ बॉडी ऐसे जा रहा है और ऐसे घूम रहा है, चलो, और ये रेफरेंस पॉइंट O के ऊपर मुझे टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन। हेलो, खाली mv इंटू आर परपेंडिकुलर देखो, तो mv इंटू आर ना, Yes, sir. भाई आर तो आर ही है ना। और ये अगर आप अपनी उंगलियां आर बार से पी बार लेके जाएगी तो अंगूठा अंदर आएगा, यस और नो। हेलो, Yes, sir. अच्छा व्हाट विल बी एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेशनल मोशन, दैट विल बिकम IC ओमेगा ओनली। हेलो, because pure rotation is about the central axis, yes or no। Yes, sir. Yes, sir. एंड कैसे घुमा रहे हो, कैसे घुमा, Anti-clockwise. क्या आएगा, Outside. डॉट आएगा। तो कहना इसे एल नेट क्या बनेगा, विल बी MVR माइनस IC ओमेगा, मॉड्यूलस ऑफ दैट मुझे मालूम नहीं है कौन सा पड़ा है, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो, क्लियर है ना। Yes, sir. ये सब टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, इजी है, सिंपल है। देखो दो कंपोनेंट्स है मेरे पास, एक है L ट्रांसलेशनल विच इज MV इंटू आर परपेंडिकुलर,
या तो वेक्टर फॉर्मेट रहेगा आर बार क्रॉस पी बार, डायरेक्शन देखना पड़ेगा, एंड एल ड्यू टू रोटेशनल एक्सिस विल बिकम आई सी इंटू ओमेगा बार, एंड इसका भी वेक्टर फॉर्म है, तो एल नेट आपको प्लस या माइनस उसके हिसाब से लेना पड़ेगा, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, एंड यू विल गेट द रिजल्टेंट आंसर। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। आई विल गो टू द सॉल्विंग पार्ट, व्हाटएवर टाइम वी हैव, 7:59, 15 मिनट तो है हमारे पास, अकॉर्डिंगली वी विल डू दैट। ओके, ध्यान दो इधर, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर 12.5, स्लाइड दिख रहा है ना, ग्रीन कलर स्लाइड दिख रहा है आप लोग को? हेलो, Yes, sir. ये खत्म ही कर देते हैं आज 12.5। देयर आर 11 exercises but a very beautiful chapter and very beautifully designed also in DC पांडे, सब अलग अलग छोटा छोटा सेक्शन दिया है। तो इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज एक बार फिर से अगर आप पूरा रिवाइज करेंगे तो जब टाइप्स दिमाग में बैठ जाएगी ना, तो जब मिक्स क्वेश्चंस आएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज आपको बराबर से वो सेक्शन में पुट करने आ जाएगा कि ये सेक्शन ये इधर बिलोंग करेगा। कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं इसमें। A uniform rod of mass m is rotated about an axis passing through point O as shown in the figure। अच्छा, point O जो दिया है ना, ये दिया है point O, point O इधर है, और ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये डिस्टेंस L है और ये डिस्टेंस 2L है, ऐसे दिया है क्वेश्चन में। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द रोटेशनल एक्सिस। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम फॉर रोटेशन आपको मालूम ही है, इज आई ओमेगा अबाउट दैट एक्सिस, बराबर क्या? हेलो Yes, sir. हेलो भाई, O है ना यहाँ पर, C थोड़ी है, तो सेंटर पे घूम ही नहीं रहा है, कोई पॉइंट O पे घूम रहा है। तो मेरे पास सबसे पहला टास्क है मोमेंटम इनर्शिया अबाउट पॉइंट O निकालने का। अच्छा, पॉइंट O इज नॉट द सेंटर, तो आई विल यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखो कैसे निकालेंगे, ये रॉड है बेटा, रॉड का टोटल लेंथ 3L है। हेलो, यस और नो? Yes, sir. कैन आई से ये IC है, ये सेंटर है, मोमेंटम इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस विल बी, ऐसे घूम रहा है कैसे भी घूम रहा है, देखो ना, ओके, एक्सिस पर मैं बोलूं दिस इज IC, और मुझे C पर थोड़ी मांगता है, मुझे तो O पर मांगता है, यस और नो? अच्छा, व्हाट इज IC का जनरल फॉर्मूला? IC का जनरल फॉर्मूला फॉर अ रॉड क्या होता है? ml square by 12. हाँ, तो ये हो जाएगा M, L is 3L square by 12। हेलो, आर यू देयर विथ मी? अरे भाई 3L है ना, Yes, sir. प्लस मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू रोटेशनल एक्सिस कितना है भाई? ये आप लोग को मालूम है कि ये डिस्टेंस L है और ये पूरा 3L है, तो ये 1.5L हुआ। अरे हुआ कि नहीं? Yes, हेलो sir. हेलो 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 हेलो। तो कैन आई से व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस? H कितना रहेगा? H L by 2. L/2 होगा ना, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमारा H है ना। तो I नॉट विल बी IC plus MH square। IC is M into 9L square by 12 plus mass into distance square, that is L square by 4। हेलो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ML square आ जाएगा, ठीक है, ML square आ जाएगा बिकॉज 12 ऊपर भी आएगा 12 नीचे भी, मैथमेटिक्स अप्लाई करो तो ये एंगुलर मोमेंटम रोटेशनल एक्सिस के अक्रॉस कितना होगा? इट विल बी I into ओमेगा, बट I is ML square into ओमेगा। एंड डायरेक्शन क्या रहेगा अगर ये ऐसे घूम रहा है तो? डायरेक्शन क्या रहेगा? आउटसाइड ना। हेलो, यस और नो? अरे भाई Yes. बोलो, करेक्ट है, ऐसे ही घूम रहे हैं, ये मिल गया ना आपको। इसको वेक्टर फॉर्मेट में अगर आपको लिखना है तो L बार इज इक्वल टू ML स्क्वायर बाय ओमेगा इनटू K कैप, बाहर का एक्सिस।
जेड एक्सिस बाहर ले, ठीक है ना। वेल वर्स्ड यू ऑल आर देयर, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आता है। A particle of mass 1 kg is moving along the line y is equal to x plus 4। अब ये लाइन बना लेते हैं हम लोग सबसे। क्या भाई स्लोप क्या है लाइन का? 1। 1 है ना, मतलब 45 डिग्री करेगा एंड 4 पर जा रहा है। 4 पर मतलब इंटरसेप्ट इसका 4 है, यस और नो? हेलो, यस और नो? ऐसा y इंटरसेप्ट इसका 4 है, मतलब ऐसे जाएगा ना कुछ। x इंटरसेप्ट क्या रहेगा? -4 रहेगा ना। हेलो, क्या है, समझ में आ रहा है क्या? यार मैथमेटिक्स के चैंपियन है आप लोग तो, यस और नो? ऐसा ये तो ठीक है, ओके। सो इट इज गोइंग अलोंग दिस लाइन, मतलब वेलोसिटी ऐसे है, तो एक पार्टिकल मास m का इस वेलोसिटी से चल रहा है, ये लाइन पर, एक कॉकरोच चल रहा है, ये लाइन पर पार्टिकल चल रहा है। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन, मतलब ये पॉइंट पर मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना, तो ये फिक्स पॉइंट है ना, रेफरेंस पॉइंट मेरा ये है। कैन आई से दिस विल बी योर r परपेंडिकुलर? अरे भाई करेक्ट है ना, mv इंटू आर परपेंडिकुलर, mv इंटू आर परपेंडिकुलर। अच्छा, आर परपेंडिकुलर ये ट्राइंगल से देख सकता हूं मैं, ये वाला दिख रहा है क्या? हेलो, ऐसा क्या रहेगा? साइन 45 ना, साइन 45 क्या हो जाएगा? आर परपेंडिकुलर बाई 4 ना, ये 4 ही तो है। हेलो, तो आर परपेंडिकुलर रहेगा 4/√2, दैट इज 2√2, यस और नो? हेलो, तो व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द ओरिजिन? mv into r perpendicular, that is m कितना है क्वेश्चन में? 1 kg, v दिया है 2 into r perpendicular is 2√2, that is 4 into √2। एंड डायरेक्शन क्या आएगा? आपको अपनी उंगलियां लेकर जाना है फ्रॉम r perpendicular to mv, अंगूठा अंदर आएगा, अंदर आएगा मतलब माइनस जेड एक्सिस। हेलो, ऐसा ये ऐसे लिखा जाएगा। हेलो, यस और नो? ये सब जेई मेन के फेमस क्वेश्चंस हैं। इफ यू रेफर टू लास्ट 16 वो 19 ईयर्स का बुक जो मैंने पीडीएफ में भेजा है, आप लोगों ने खरीदा भी रहेगा, उसमें क्वेश्चन सर्च करो, यही सब टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। हेलो, क्लियर? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई कम टू क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड वाला आई हैव डन। अभी किया था ना वो प्रोजेक्टाइल मोशन वाला, हाईएस्ट पॉइंट वाला। हेलो, तो आप लोगों ने आंसर भी बताया था। क्वेश्चन नंबर 3 इज आल्सो डन, दैट प्रोजेक्टाइल मोशन देख सकते हो आप लोग। ये देखो, ये पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड at an angle alpha, find the magnitude of angular momentum at the highest point above the point of projection। बराबर है ना? हेलो, ठीक है, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 पर आते हैं, 5 पर ये वाला question। ये भी चीज हमने सिखा दी है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ योर डीसी पांडे। ठीक है यार, हेलो, चलो बताओ। सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। अच्छा, रोलिंग कंडीशन है ना, रोलिंग का मतलब क्या होता है? अभी रोलिंग सिखाया नहीं है मैंने, रोलिंग थियरी पढ़ा है ना आप लोगों ने। हेलो, रोलिंग का मतलब क्या होता है? किसी को याद है क्या? दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड दिस इज ओमेगा। रोलिंग का मतलब मैं पढ़ाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में। रोलिंग का मतलब होगा VCM शुड बिकम इक्वल टू आर ओमेगा। हेलो, 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 यस और नो? अरे भाई ये आना चाहिए हाँ, ये सम करने के लिए। दे हैव अज्यूमिंग दैट यू नो रोलिंग। हेलो बाबा, हेलो, क्लियर है ना भाई? कैन यू लिसन? ऐसा
हाँ भाई, ये रोलिंग कंडीशन है। अभी अभी फिलहाल आपको आना चाहिए, नहीं भी आता है तो मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में आपको सिखा दूंगा जब भी इसका टर्न आएगा तभी। अभी फिलहाल ये कह रहा है रोलिंग कर रहा है, बस खत्म, विदाउट स्लिपिंग, मतलब स्लिप नहीं कर रहा है, रोल कर रहा है। फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द जेड एक्सिस। जेड एक्सिस इज पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। बाबा ये जेड एक्सिस हुआ कि नहीं, तो इनडायरेक्टली दे नीड एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन। दे नीड, बिकॉज जेड एक्सिस से ही, ओरिजिन से ही पास हो रहा है ना, तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन चाहिए। तो कैन आई से ये जो पार्टिकल है, ये जो सेंटर है वो वीसीएम से ऐसे जाएगा एंड ओमेगा से ऐसे घूमने वाला है, बस ये रोलिंग कंडीशन ही कह रहा है, ये चीज आपको आना चाहिए। हेलो, एंड वीसीएम इज आर ओमेगा, और एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए रोलिंग में, वीसीएम शुड बिकम आर ओमेगा, दिस इज रोलिंग कंडीशन। चलो, आई वांट टू फाइंड मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट, सो कैन आई से व्हाट विल बी द ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस पॉइंट। अब पढ़ाया था यार, बोलो। कैन आई से आर परपेंडिकुलर आर होगी ना, बोलो। कोई बता सकता है व्हाट इज एंगुलर ट्रांसलेशनल मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ? MVR। एम वीसीएम इनटू आर बराबर क्या? अच्छा, डायरेक्शन क्या रहेगा? अरे भाई, डायरेक्शन क्या रहेगा? हेलो, इनवर्ड्स। ये क्या हो रहा है? डायरेक्शन रहेगा अंदर की तरफ, तो ये आर आ गया। अच्छा, रोटेशनल will become IC into omega. What is moment of inertia for a solid sphere about the center? Hello, hello, hello. अरे भाई, yes or no? Yes or no? Yes, sir. And omega को मैं लिख सकता हूँ VCM by R, या VCM को R ओमेगा लिखो, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड ओमेगा ऐसे घूम रहा है, ओमेगा कैसे घूम रहा है, देखो ऐसे घूम रहा है, क्लॉक घूम रहा है, तो ये भी अंदर तो आएगा ही ना। यस और नो? क्लियर है ना? तो नेट एंगुलर मोमेंटम जो बनेगा विल बिकम एम वीसीएम आर प्लस एक आर और एक आर कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2/5 एम वीसीएम आर will be 7/5 एम वीसीएम आर इंटू अंदर का डायरेक्शन है, अंदर का डायरेक्शन मतलब माइनस के कैप में चला जाएगा। हेलो, बोलो भाई। Yes, sir. ओके, तो कॉन्सेप्चुअली यू शुड बी a little well versed, nothing else. एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, इसके बाद वाला ही है। इन एग्जाम्पल नंबर 12.16, मतलब ऊपर वाला क्वेश्चन, if the disk starts rotating anti-clockwise with the same angular velocity, what will be the angular momentum of the bottommost point in the new situation? क्या रहेगा आंसर? फटाक से आंसर बोलो। मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि ऐसे तो जा रहा है बट घूम रहा है, ऐसे नहीं है। हेलो, ये ऐसे घूमना चालू कर रहा है ना, सॉरी, ऐसे जा रहा है। तो what will be the angular velocity about angular momentum of the bottommost point? बोलो क्या रहेगा? एल ट्रांसलेशन क्या रहेगा? वही रहेगा ना। So won't VCM also be to the left? नहीं बेटा, सही तो है। क्या कह रहा है? डिस्क स्टार्ट्स रोटेटिंग, ओनली रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। हेलो, PCM is not, they are not telling you it is rolling motion now. हेलो, it will slip motion, इधर क्वेश्चन में बोला है क्या रोलिंग मोशन है? हेलो, हेलो, ये रोल नहीं कर रहा है अभी, ये स्लिपिंग कंडीशन में आ गया। Okay, sir.
ओमेगा ऐसे ही है, वी के बारे में कुछ बोल रहा नहीं है, तो वी तो कांस्टेंट ही है, जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। तो बॉटम मोस्ट पॉइंट स्लिप करेगा, वो आगे आपको पढ़ाया जाएगा कि रोलिंग नहीं कहते, इसको रोलिंग नहीं कहते, इसको कहते हैं फॉरवर्ड स्लिपिंग। ओके, तो MVCMR यही बनेगा, बिकॉज ये डायरेक्शन हो गया ना। अच्छा, एल रोटेशन क्या हो गया, IC ओमेगा, दैट इज 2/5 MR² इनटू ओमेगा। ये रोलिंग नहीं है, रोलिंग नहीं है। ओके, और ये कैसे रहेगा, डॉट। डॉट बन जाएगा। तो एल नेट क्या बन गया, MVCMR -2/5 MR² इनटू ओमेगा। ओके, अगर यहां पर VCM इज R ओमेगा हुआ ना, तो भी वो रोलिंग नहीं है। हेलो, यस सर। क्योंकि डायरेक्शन मैच होना चाहिए ना भाई, बॉटम मोस्ट पॉइंट फिक्स्ड होना चाहिए, याद है ना आपको, रोलिंग कंडीशन में याद है मैंने आपसे कहा था कि विद रिस्पेक्ट टू द बॉटम मोस्ट पॉइंट दिस पॉइंट शुड बी फिक्स्ड ना। हेलो, यस सर। अगर आपने थोड़ा थियरी देखा है ना तो आपको समझ में आएगा, वरना आपको थोड़ा 2 दिन रुकना पड़ेगा, तो मैं आपको पूरा सिखा दूंगा। बट VCM इज R ओमेगा होने के बावजूद डायरेक्शन अगर मैच नहीं करता है तो ये रोलिंग नहीं कहलाएगा। थोड़ा वीडियो देखो, समझ आएगा, ठीक है। So I am closing it here. Next time we continue from 12.7 and then we'll आगे बढ़ते हैं हम लोग प्योर रूलिंग। नेक्स्ट टाइम ही मंडे को आई स्टार्ट। चलो, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय सर, थैंक यू। बाय, थैंक Bye, sir. Thank you, sir. यू।